Hello Aishwarya. So hope you are fine. Okay. So today I am going to start a topic in which you will learn how to make graph of the trigonometric functions like sin x, cos x, cosec x, sec x, tan x and cot x, and at the same time how to find the domains and how to find the range. And next I am going to teach you at the different axis, x axis and y axis, what is the value of trigonometric functions. Okay. Now you see this angle, you know it is 0 degree, okay, but I will write radian preferably, okay, or else you can write this is 0 degree. At the same time you will call this as 0 rad. I am not writing anything for radian. And here if you see, here it is 90 degree. At the same time the rad equivalent would be pi by 2. I hope you know this. This is what? 180 degree, and the radian equivalent would be simply pi, and this would be 270 degree, and the radian equivalent would be 3 pi by 2. Okay, and here Aishwarya, I am taking anti-clockwise rotation. Kindly note this, I am taking anti-clockwise rotation. So if you take clockwise rotation, then in that case this would be 90 degree, this would be 180 degree, this would be 270 degree, this would be 360 degree, and hence you have completed one rotation in anti-clockwise direction, clockwise direction. Is it clear? If you continue your rotation again, then again you have to increase your degrees, and you will reach here after completing two rotations, and the angle cover will be 360 into 2 or it will be 4 pi. ठीक है, तो एक रोटेशन के लिए बच्चों 2 पाई, और एक रोटेशन करोगे 4 पाई, और एक रोटेशन करोगे 6 पाई, like that. Now you see this half rotation would be pi and this half will be pi. So pi plus pi क्या हो जाएगा बच्चों? 2 pi. Clear? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है ना. तो यानी this is pi by 2, this half rotation is pi. तो you know very well, you can say half rotation, you can call it as pi. Very very important. Quarter rotation will be pi by 2, and full rotation you will call as 2 pi. इतना याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो एक कंप्लीट रोटेट करोगे तो 2 pi होगा. व्हेन पॉजिटिव, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस साइन अगेन एंड अगेन. पॉजिटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव मीन्स क्लॉकवाइज. एकदम सिंपल. सो बच्चों, व्हेन आई टेक, and usually I am going to take anti-clockwise rotation by convention, because in anti-clockwise we are going to get positive angles. ठीक है बच्चों, देखिए I am taking one rotation, this is 2 pi, one more rotation, come on, 4 pi, one more rotation, 6 pi, like that. Okay, or else this is pi, again 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi. So like that the rotation will continue. Is it clear? चलिए, now here some of the angles, you know, I am discussing sine over positive x axis and negative axis at the same time. This is positive and this is negative, right? So if I write sine 0, I am going to get 0. Okay, and if I write sine pi, again it will be 0. Sine pi is 0. Okay, कैसे 0 आया मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन sine pi is 0. You take one more rotation, half rotation. When you reach this side, what you are getting?
2 pi, sine 2 pi is also 0. That means whenever you land here and here, the value of sine function would be 0. इसको दिमाग में रख लीजिए. तो यानी whenever you land at this point positive x-axis and this point negative x-axis, the value of sine function would be 0 always. ठीक है. अब बताइए what is sine 3 pi? We are landing at here. Answer is 0. What would be sine 4 pi? We are landing here. So again sine will be 0. So like that, that means for 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, the value ... 5 pi, 6 pi, 7 pi, the story continues. The value you are going to get would be 0. Am I right? What is the general form of this entire radians? Can you write any general form for this radians? 0, pi, 2 pi, 3 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi. Of course you can generalize this flow, and that would be n pi. So that means I can say sine n pi would be 0. So sine n pi is always 0 where n belongs to integer, either positive or negative. So here comes the most important point, my dear students. तो जब भी मैं बोलूँ sin n pi तो समझ जाना आंसर 0 है. ठीक है, एकदम क्लियर है. चलिए, now we are going to focus towards zeros only now. And this, you know, this is sin 90. Sin 90 is 1, and this is sin 270 is -1, and this is 1. So that means here over the y-axis, the value of the sine function will oscillate between 1 and -1, 1 -1, 1 -1, 1 -1. ठीक है बच्चों. और आपका जो x एक्सिस है, इसमें साइन का जो वैल्यू है वो ऑसिलेट नहीं होगा, एक ही वैल्यू साइन पकड़ेगी. दैट इज 0 0 0 0. साइन 0 इज 0, साइन पाई इज 0, साइन 3 पाई, दिस इज साइन अगेन 2 पाई इज 0, साइन 3 पाई इज 0, साइन 4 पाई इज 0, साइन 5 पाई इज 0, साइन 6 पाई इज 0. लाइक दैट इट ऑसिलेट्स. क्लियर है ना बच्चों? चलिए अब बात करते हैं कॉस का. तो ये तो साइन का हो गया पूरा, मैंने लिख दिया पूरा क्लियरली बच्चों. देखिए 0 का 0, पाई मतलब पाई बाई 2, बस लिखा मैंने, वैल्यू नहीं लिखा है. अगर वैल्यू लिखना है तो वो भी मैं लिख देता हूँ. तो साइन 0 विल बी 0 and here sin pi means 180 would be 0. Again if you continue the next one, this will be sin 2 pi would be 0. If again you continue here, sin 3 pi would be 0. Like that this will be zeros. Okay, so in one way you can say that this axis would be 0 axis for साइन फंक्शन. चलिए बच्चों अब मैं बात करता हूँ कॉस की. कॉस भी बहुत बढ़िया है. तो बस हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि साइन का कौन सा रेडियन 0 आता है. ठीक है बच्चों. सो दिस इज अगेन x, दिस इज x डैश, दिस इज y, and this is y dash. Now we are going to do, this was for sine function, you can call this a sine function. Now here we are going to see cos function. We are going to see cos function. देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से. ठीक है बच्चों. You see this is 0, you know. So what is cos 0? Cos 0 is 1. This is cos 90. I will write pi. It is going to be 0. Yes, here the 0 axis shifts to y axis. This could be cos, no, this is pi by 2, my dear students. This will be cos pi. Again you are going to get
-1. So here the value of cos function oscillates between 1 and -1 over the x-axis. So here if you come, this is going to become what? Cos 3 pi by 2 बच्चों, 3 pi by 2 यानी 270 डिग्री, and it is going to become 0. Yes, this again after one complete rotation बच्चों, you are going to get this as cos 2 pi which is 1, because बच्चों ये पूरा रोटेशन को क्या कहेंगे? पाई कहेंगे, and this rotation is again you will call it as pi, so the complete circle will become 2 pi. याद रखिए बच्चों. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. वापस अगर मैं आता हूँ तो ये वैल्यू 2 पाई के बाद है, तो यहाँ मिलेगा आपको 2 पाई प्लस पाई बाई 2, बिकॉज यहाँ तो 2 पाई हो गया ना. आप ये ट्रैवल करोगे तो यू आर ट्रैवलिंग पाई बाई 2, सो दिस यू आर गोइंग टू गेट 2 पाई प्लस पाई बाई 2, एंड द आंसर यू आर गोइंग टू गेट इज cos 5 पाई बाई 2 विच विल बी 0. तो ये हो गया बच्चों 5 पाई बाई 2. वापस मैं यहाँ आया, इसका नाम बताइए क्या होना चाहिए? दिस इज पाई पाई पाई. हाउ मेनी पाइस? 3 पाइस. सो दिस इज cos 3 पाई. cos 3 पाई इज -1. ओके, तो यानी यहाँ पे जो भी एंगल आते रहेगा बच्चों घूमने के बाद वो सब -1 होगा. यहाँ जो भी एंगल आते रहेगा सब +1 होगा. एंड वॉट एवर एंगल यू आर गेटिंग ओवर पॉजिटिव y नेगेटिव y, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बिकम 0. सो दिस विल बी वॉट? टेल मी, इसका नाम क्या होना चाहिए? आप 3 पाई तक पहुँच गए, फिर आपने एक्स्ट्रा पाई बाई 2 कदम आगे बढ़ाया. सो अल्टीमेटली ये जो एंगल बन जाएगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बिकम 7 पाई बाई 2, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 0. करेक्ट? एंड दिस यू आर गोइंग टू गेट वॉट? 4 पाई. cos 4 पाई इक्वल टू 1. तो बच्चों आपको एक्स एक्सिस ओवर वाई एक्सिस का एंगल का नाम पता होना चाहिए. चलिए छोटा सा मॉक ड्रिल कर लेते हैं आपके लिए. कम ऑन, दिस इज 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई. फिर आगे बढ़िए. 2 पाई के बाद बच्चों क्या मिलेगा? 5 पाई बाई 2. दिस इज 3 पाई. ओके, और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? 7 पाई बाई 2. ओके, वापस आप जाओगे 2 पाई. तो यानी ये एक्सिस में जो जो नंबर आने वाला है मैं लिख रहा हूँ बच्चों. ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट और एक बनाऊंगा ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं उसमें आपको नंबर लिख के दिखा देता हूँ. तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत बेसिक है. अगर आप जानोगे समझोगे तो ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक को बड़े प्यार से हैंडल कर पाओगे. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. एकदम समझना है. सो दिस इज x डैश, दिस वुड बी y, एंड दिस इज y डैश. ठीक है, अब बताइए खाली ये एंगल में कौन कौन सा, ये पोजीशन पे कौन कौन सा एंगल बनेगा? 0, और एक बार घूम क्या होगे 2 पाई, और एक बार घूम क्या होगे 4 पाई, और एक बार घूम क्या होगे 6 पाई, और एक बार घूम क्या होगे 8 पाई, और एक बार घूम क्या होगे 10 पाई, एंड सो ऑन. सही है ना बच्चों? ये समझ में आ गया आपको? यहाँ बताइए क्या मिलेगा आपको? पाई बाई 2 मिलेगा बच्चों. उसके बाद एक राउंड करके आओगे, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, तो यहाँ मिलेगा 5 पाई बाई 2. यानी आपको बीच का एक ऑड नंबर छोड़ देना है. 5 के बाद 7 आता है, आपको मिलेगा 9 पाई बाई 2. 9 के बाद 11 ऑड नंबर आता है, आपको लिखना है 13 पाई बाई 2. ठीक है बच्चों, तो ये सारे लोकेशंस में एंगल बनते रहेंगे. मतलब समझे ना? यहाँ पे बन रहा है ऑड इवन नंबर, यहाँ बन रहा है, इसको आप बोलोगे 1, फर्स्ट इज 1, नेक्स्ट ऑड नंबर 3 था, 3 यहाँ लगा देना है बच्चों यहाँ. ठीक है, तो यानी इस लोकेशन का आने वाला है 3 पाई बाई 2. फिर बताइए 3 के बाद 5 छोड़ देना है. नेक्स्ट यू आर गोइंग टू राइट 7 पाई बाई 2. 7 के बाद 9 छोड़ देना है बच्चों. 11 पाई बाई 2 बच्चों. 13 छोड़ देना है.
फिर नेक्स्ट मिलेगा 15 पाई बाई 2, 17 छोड़ देना है बच्चों, 19 पाई बाई 2। तो ऐसे करके आपको ये एंगल यहाँ पे बनता चला जाएगा रोटेशन के बाद। इसका लोकेशन, फर्स्ट रोटेशन यू आर गोइंग टू गेट पाई बच्चों, सेकेंड रोटेशन दिस इज पाई, ओके, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई। तो बच्चों दिस इज वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट यू आर गेटिंग ओनली ऑड नंबर ओवर हियर, राइट, डॉट 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 जाते ही रहेगा। तो ये लोकेशंस को पूरा समझ जाइए, ठीक है बच्चों। अब मैं खाली बात करता हूँ एक्स एक्सिस का। किसका बात करता हूँ? आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एक्स एक्सिस माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, व्हाट ऑल वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज ऑल द इवन इंटीग्रल ऑफ पाई, दिस इज ऑड, यू कैन से मल्टीपल ऑफ पाई, ओके। सो बच्चों तो अभी आप इन दोनों को मिला दोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, सी आपको फर्स्ट 0 पाई, फिर आपको 2 पाई, देन बताइए 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, कम ऑन, 9 पाई, 10 पाई एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो ये पूरे जो नंबर्स दिख रहे हैं बच्चों, इसका जनरल फॉर्म बताइए। ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, नया नहीं है अभी। जनरल फॉर्म बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो द जनरल फॉर्म वुड बी n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये ज़रूर याद रखिएगा बच्चों। अब मैं डिस्कस करता हूँ खाली y एक्सिस का। तो बताइए बच्चों y एक्सिस में आपको क्या क्या एंगल मिला था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के बताइए। फर्स्ट यू गॉट पाई बाई 2, नेक्स्ट यू गॉट 3 पाई बाई 2, फिर आपको मिला था 5 पाई बाई 2, फिर आपको मिला था 7 पाई बाई 2, देन यू गॉट 9 पाई बाई 2, देन यू गॉट 11 पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी ये जो y एक्सिस है ना, इसका जो जनरल देखिए ये आता था किसमें, ओवर दी y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। तो बच्चों ये सबका जो जनरल फॉर्म है, आप जनरल फॉर्म को लिख सकते हो 2n + 1 पाई बाई 2, 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ ऑल द एंगल्स दैट लाई ऑन y axis and this is the general form of all the angles that lie on x axis। सिंपल बात है बच्चों। ये जनरल फॉर्म अगर आप याद रखोगे तो आपको डोमेन और रेंज निकालने में मदद होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात है भाई, बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सो ये वीडियो को देख के पूरा को लिख के मेरे को भेजिए ऐश्वर्या। तो ये रोटेशन पूरा क्लियर है कि नहीं ये बताना मुझे, ठीक है। तो पॉजिटिव रोटेशन, नेगेटिव रोटेशन एंड नेम ऑफ ऑल द एंगल्स विद द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। एक्स एक्सिस ये है साइन का बच्चों। चलिए कॉस में ये देखिए ये हमेशा 0 रहता है, वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस के एंगल का जो जनरल फॉर्म है मैंने बताया था आपको, इट इज़ 2n + 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। So cos 2n + 1 pi by 2 will be equal to 0, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। where n belongs to integer आप लिख सकते हो। तो यानी cos is 0 over the y axis and the general form is this angle, and sin is 0 along the x axis and the general form is this angle, sin n pi। तो अगर आपसे कोई पूछे साइन कब 0 है तो बोलना बच्चों साइन n पाई में 0 है। कोई पूछे कॉस कब 0 है तो बोलना कॉस 2n + 1 पाई बाई 2 में 0 है। सिंपल। तो यही मैं मेन चीज़ बताना चाह रहा था 20 मिनट के वीडियो में कि साइन n पाई इज 0 एंड कॉस 2n + 1 पाई बाई 2 इज 0। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।